Good morning, students. Hope everyone is fine and enjoying your days too. But there you have to study also, because without study we cannot do much better in our life. So we will do the next as we were doing. So now our first topic of the class 9, that is rational numbers. Rational numbers. क्या होते हैं rational numbers? Rational numbers are those which we can represent in the form of P upon Q. Those rational numbers which can be represented in the form of P upon Q, where Q never be equal to 0. इसमें Q जो है that never be 0, वो 0 नहीं होना चाहिए. बाकी P can be 0. P can be 0, but Q never be 0, because in the denominator if you write 0 then that has not defined value. हमारे पास उसका अभी तक कोई प्रूफ नहीं है कि अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो तो उसका आंसर क्या आता है. दैट्स वाई वी नॉट कंसिडर दोज नंबर्स वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0. मीन्स डिनोमिनेटर में आपके पास 0 नहीं होना चाहिए. ओके, फॉर एग्जाम्पल लाइक 5 upon 3, 2 upon 3, ठीक है, -1 upon 2, 4 upon 7. All these are your rational numbers. After this, you have numbers like 5, 2. These are also rational number, because why we can say that these are also rational number? Because we can write this number as 5 upon 1. It means we can write in the denominator 1. तो अगर आप 1 को 5 में डिवाइड करोगे तो ये आंसर क्या आएगा आपका? 5 भी आएगा. It means we can say that this 5 upon 1 is also a rational number. ठीक है, the same way 2 can be a rational numbers. Okay, yes, and 0 is also a rational number, because we can write 0 is as 0 upon 1. See, in the denominator there is not 0, as I told you that Q can't be 0. Q आपके वो 0 कभी नहीं हो सकता, and that's why we take 1 in the denominator. So 0 upon 1 is a rational number, but 1 upon 0 is not a rational number. ठीक है, ये आपका rational number जो है वो नहीं होता. ठीक है, 1 upon 0 never be a rational number, but 0 upon 1 is a rational number. Okay, now next is, can we say all whole number as rational number? जो आपके होल नंबर्स होते हैं क्या आप उनको रैशनल नंबर्स कह सकते हो? यस, ऑब्वियस कह सकते हैं, बिकॉज होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम whole number that start from 0, 1, 2, 3, 4 and so on. आप जितने भी नंबर लिख के जा सकते हो. All these numbers are of your whole numbers, and these whole numbers are also considered as a rational number. आप इनको भी rational number कह सकते हो, because we can write 1 in the denominator of each number. So we can say all whole numbers are your rational number, but all rational number are not whole number, because rational number can be the form of fraction. वो आपके fraction के form में भी होते हैं, but whole number को हम fractions में नहीं कहते, and that's why whole number can be rational number, but rational number are not whole number. All rational numbers are not whole number. Okay, next, that is your natural number. Okay, one thing more, if sometimes students forget that what are whole numbers and from where they are started. So you can remember those numbers from the spelling. आप spelling से भी याद रख सकते हैं कि whole numbers क्या होते हैं. पूरे के आप spelling में ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपके पास letter है, alphabet letter, that is O, and O is just like numeric number 0.
So you can remember from there that whole numbers are start from the 0. यहाँ से आप इसकी स्पेलिंग से याद रख सकते हैं that whole numbers start from the 0. Okay. Next are natural numbers. Natural numbers आपके क्या होते हैं? Natural numbers which are start from the 1. जो आपके 1 से start होते हैं, those numbers are considered as natural numbers. And this also you can remember from the spelling. आप ये भी यहाँ से याद रख सकते हैं कैसे? जब भी आप natural यानी कि natural की spelling लिखना शुरू करोगे, you will write by writing starting from n. आपने n लिखना है, n बनाने के लिए आपको पहले 1 ही लिखना पड़ता है। जब आप n लिखते हो, n बनाना है आपने, तो n बनाने के लिए आपको पहले क्या लिखना होता है? 1. So from there you can remember that natural numbers start from 1. ये आपके 1 से शुरू होते हैं। So 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. All these numbers are considered as natural number, but remember the natural number start from 1. ठीक है, वो 1 से शुरू होते हैं and you can remember from the spelling. आप इसकी spelling से याद रखें। जब आपने natural का n बनाना होता है तो आप पहले क्या लिखते हो? हमेशा 1 लिखते हो and from there you can remember that natural number always start from the 1 and whole number start from the 0. Okay, so now my question is that can we call natural number as whole number? क्या आप natural number को whole number कह सकते हैं? Yes, think. Natural number को आप whole number कह सकते हैं। So if you see natural number start from 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये यहाँ से शुरू हो रहे हैं और whole आपके 0 से शुरू हो रहे हैं। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर जो हैं आपके दैट आर इन द होल नंबर, वो सभी होल नंबर में आपको विजिबल हैं। इट मीन्स नेचुरल नंबर कैन बी कॉल्ड एज होल नंबर। आप नेचुरल नंबर जो है उनको हम होल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ कैन बी कॉल्ड होल नंबर एज नेचुरल नंबर। क्या आप होल नंबर को नेचुरल नंबर कह सकते हो? ठीक है, सो इन दिस वन यस, थिंक अबाउट see whole number start from 0, 1, 2, 3, 4 and natural start from 1, 2, 3, 4. So can all the whole numbers are natural number? Yes, think yes, it is no, because whole number has 0 and natural number has not 0. So that's why we can say that whole numbers, all whole numbers are not नेचुरल नंबर। सभी आपके होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। ठीक है, ओके। कैन बी कॉल्ड नेचुरल नंबर एज रैशनल नंबर? यस, बिकॉज ऑल दीज नेचुरल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q by writing just 1 in the denominator. So all natural number are also रैशनल नंबर। ठीक है, आप सभी नेचुरल नंबर को रैशनल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन, एज आई टोल्ड यू दैट रैशनल नंबर्स जो आपके हैं now we are going to find number of rational numbers between given to any numbers. आपके पास कोई दो नंबर गिवन होंगे, आपने उनके बीच के रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है। सो लेट आई टेक एग्जांपल दैट फाइंड 5 रैशनल नंबर between 2 and 3। ठीक है, हमने ये करना है 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं 2 and 3 के बीच। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपने बेटा रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, फर्स्ट यू शुड सी दैट द गिवन नंबर्स हैव द सेम डिनोमिनेटर और नॉट। सबसे पहले आपने यही देखना है कि जो गिवन नंबर्स हैं क्या उनके डिनोमिनेटर सेम हैं। अगर सेम नहीं है देन वी विल मेक फर्स्ट सेम। तो आपने पहले दोनों के डिनोमिनेटर को सेम
बनाना है, ये आपने इस पहले ध्यान रखना है, ठीक है। अगर सेम है देन इट्स गुड, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी सी दैट गिवन numbers has same denominator or not. So you have given number 2 and 3. So now there is no any denominator. तो अगर किसी के नीचे कोई denominator नहीं होता then we will take there always yes 1. और वहाँ के पीछे क्या लिखते हैं 1. So we can see that both the given numbers have same denominator. दोनों का denominator क्या है आपके पास, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। एंड दैट्स वाई अगर दोनों सेम है आपके देन हाउ विल वी फाइंड द नंबर्स, रैशनल नंबर बिटवीन दीज। फर्स्ट ऑफ ऑल टू अपॉन 1 एंड 3 अपॉन 1, ठीक है। 2 अपॉन 1 3 अपॉन 1 में आपने रैशनल नंबर कितने फाइंड करने हैं 5 रैशनल नंबर आपने फाइंड आउट, ठीक है। तो जितने भी रैशनल नंबर आपको फाइंड करने के लिए बोलता है बेटा, आपने उसमें हमेशा 1 प्लस कर दें, ठीक है। अगर आपने कोई सा भी सम आपके पास आ जाए, एवरग्रीन मेथड ये आपका हर सम पे लागू होगा, जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ये आपका हर सम पे लागू होगा आपका, जिसमें रैशनल नंबर फाइंड करने वाली होगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास 5 रैशनल नंबर जैसे मैंने फाइंड आउट करने हैं। जितने भी रैशनल नंबर आपने फाइंड करने हैं उसमें आपने हमेशा 1 ऐड करना है, ऑलवेज 1 ऐड आपने करना है, ठीक है। सो 5 इज हियर, इसमें आपने 1 ऐड किया तो कितने हो जाएंगे आपके पास 6, यस। नाउ यू हैव 6 एंड दिस 6 विल मल्टीप्लाई विद बोथ साइड ऑन बोथ द रैशनल नंबर, दोनों रैशनल नंबर्स में आपने 6 से करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट, इट बिकम 2 अपॉन 1 मल्टीप्लाई विद 6 अपॉन 6 and in the same way here also 3 upon 1 multiplied by 6 upon 6. Got it? दोनों साइड आपने ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ओके। आफ्टर दिस वन नाउ मल्टीप्लाई 6 टू का 12 and 6 1 का 6. In the same way here also 3 6 का 18 and 6 1 का 6. So now you can see that you have 12 upon 6 and 18 upon 6, okay. After this one, now you can see that we have numbers between 12 and 18 because both have the same denominator. So you can see that we have the 5 numbers between these two given numbers. और sometimes अगर आपके पास ज़्यादा नंबर भी पीछे बनते हैं then you will write only those number which are asked in the question. Like here is 5. तो मान लो अगर आपके दोनों given numbers के बीच में बहुत ज़्यादा नंबर्स भी अगर आते भी हैं तो आपने बाकी ज़्यादा सारे नहीं नंबर्स लिखने, यू विल राइट ओनली दोज क्वांटिटी विच इज़ आस्क्ड इन द क्वेश्चन। सो वी विल सी दैट बिटवीन 12 एंड 18 राइट दोज नंबर्स विच आर बिटवीन 12 एंड 18। सो वी कैन राइट हियर 5 रैशनल नंबर्स आर, जो आपके 5 रैशनल नंबर्स हैं वो कौन से होंगे, फर्स्ट इज 13 अपॉन 6 बिटवीन दिस 12 एंड 18 के बीच में जो बेटा है वही लिखने हैं आपने, 13 अपॉन 6 14 अपॉन 6 15 अपॉन 6 16 अपॉन 6 एंड 17 अपॉन 6। बिटवीन बेटा यूज करना है, इनके बीच वाले इनको एक्सक्लूड कर देना आपने, 12 एंड 18 को इंक्लूड नहीं करना है, दिस विल बी एक्सक्लूड, आपने इनको एक्सक्लूड कर देना है। And now you can see we have 5 rational numbers 1 2 3 4 and 5. So these are 5 rational numbers between 2 and 3. Okay. Now let me take another example in which we have not same denominator. आपके पास उस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर जो आपका है वो सेम नहीं होने वाला है, तो उस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करें, ठीक है। लेट मी स्टार्ट। So again you have 5 rational number आपने find out करने हैं, but now the question little bit change, that between 2 upon 3 and 3 upon 4. So now I have question 2 upon 3 and 3 upon 4. Now you can see that both the given rational numbers have
नॉट सेम डिनोमिनेटर, दोनों के डिनोमिनेटर जो है दोज आर नॉट सेम, वो सेम नहीं है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है देन हाउ कैन यू सॉल्व दिस वन? एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट सम दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड मेक द सेम डिनोमिनेटर, आपने सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाना है एंड आफ्टर दैट ऑल स्टेप्स आर सेम एज वी डिड इन द लास्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू मेक द सेम डिनोमिनेटर? तो डिनोमिनेटर को सेम बनाने का मेथड क्या है हमारे पास? टू मेक द सेम डिनोमिनेटर यू हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। ठीक है, जब भी आपने डिनोमिनेटर को सेम बनाना है उसको बनाने का आपके पास one method, that is always remember that you have to take the LCM, आपने उसका LCM find out करना है। So let me start LCM of 2 upon 3 and 4। ठीक है, तो LCM आपने जो लेना है वो डिनोमिनेटर का लेना है, मैं बार बार कह रहा हूँ न्यूमिनेटर का नहीं लेना है आपने, बिकॉज वी आर मेकिंग द सेम डिनोमिनेटर, आपने डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर नॉट ऑफ न्यूमिनेटर। ओके, सो एलसीएम ऑफ 3 and 4 that will be, if you find the LCM of 3 and 4 and you every students know how to find the LCM, then that will be your 12। अगर आप इसका LCM फाइंड आउट करोगे that will be 12, आपका 12 LCM आएगा, then find also। ओके, तो एलसीएम आपका 12 आ गया है, मीन्स आपने दोनों के डिनोमिनेटर में 12 बनाना है। ठीक है, यू हैव टू चेंज द गिवन डिनोमिनेटर इनटू 12, जो आपका एलसीएम आया वो आपने हमेशा बनाना, तो जो भी आपका एलसीएम आएगा, ठीक है, जो भी एलसीएम आना है आपने वही आपने इनके डिनोमिनेटर में बनाना होता है। ठीक है, सो 2/3 के डिनोमिनेटर बेटा आपने 12 बनाना है, सो बाय विच नंबर यू विल मल्टीप्लाई? यस, थिंक दैट इज 4, सो मल्टीप्लाई विद 4 न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, एंड इन द सेम वे next rational number is 3/4, and this one also you have to take the same denominator to make it 12, you will multiply this 4 with the as well as numerator, आपको numerator और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है, नॉट विद डिफरेंट नंबर्स। ठीक है, ओके, सो नाउ मल्टीप्लाई, become 4 to 8 and 3 4 12, and in the same way here also 3 is 9 and 4 is 12, so you have given number 8/12 and 9/12, so ये आपके पास नंबर है। नाउ यू कैन सी दैट बोथ द रैशनल नंबर्स हैव द सेम डिनोमिनेटर, जो कि आपका लास्ट सम में था, तो इसके तरीके से आपके दोनों क्या होंगे? सेम, बोथ हैव द सेम डिनोमिनेटर, इट मीन्स आफ्टर दिस वन, अब आपके सारे स्टेप्स वही पिछले वाले जो पिछले सम में भी हमने किए थे, मीन्स हाउ मेनी रैशनल नंबर फाइंडिंग हियर? 5। जितने भी आपने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने होते हैं उसमें आपने 1 ऐड करना है। ठीक है, यू विल ऐड 1 इन द नंबर ऑफ रैशनल नंबर विच इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। सो 5 आर देयर, 5 पूछे तो आप उसमें प्लस करोगे यानी कि 6, तो 6 से आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अगर उन्होंने पूछा आपसे 9 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने, तो 9 में आप 1 प्लस करो, इट बिकम 10, सो आप 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, जितने भी मतलब रैशनल नंबर आपसे वो पूछ रहा है क्वेश्चन में, आपने उसमें जस्ट 1 ऐड करना है एंड मल्टीप्लाई विद दैट नंबर्स। ठीक है, सो हियर वी आर सेइंग दैट देयर आर 5 रैशनल नंबर जो आपने फाइंड आउट करने हैं, सो आई ऐड 1 इन दिस वन, सो इट बिकम 6, तो आपने 6 से करना है इनको मल्टीप्लाई, सो इट बिकम 8/12 मल्टीप्लाई विद 6/6, and in the same way here also 9/12 multiply with 6/6. Okay, now multiply here. 8 6 48 upon 12 6 72, and here also 9 6 54 and 12 6 72. Now you can write the number of rational numbers which is asked in the question, यानी कि 5 आप इजीली से लिख सकते हैं। सो 5
rational numbers are, क्या होंगे इनके बीच में लिखने बेटे, एक्सक्लूड दीज 40 और 54 को नहीं लेना आपने, इनको एक्सक्लूड करना है, इनके बीच वाले नंबर्स को आपने लिखना है। सो 48 के बाद क्या आएगा आपके पास 49/72, 50/72, 51/72, 52/72 and 50/7. So you can see that we have 5 rational number which is asked in the question. Hope every student has understand these questions and you can solve your exercise 1.1 using these examples which I discussed with all of you through this video. And please see the video again if you are unable to solve the sum and you are unable to understand. See the video again. If still you have problem, you may ask me anytime. Thank you. Have a beautiful day, students. But keep trying, keep learning. Have a beautiful learning. Thank you.